Hello student, today we are going to start the chapter number 5 of class 8. The name of this chapter, coal and petroleum. So in this chapter we will be discuss about what are the meaning of the coal and petroleum and how we use it, where we use it. So firstly you will be see here the material. Okay, so material definitely all the things which you see in your surrounding, all the matter, they will be known the materials. And firstly we will be classify them into the two group. All the materials we classify into the two group. One is known the natural resource, second is known as the synthetic resource or man-made resource or artificial resource. Now you will be see the definitely the natural, those resources which we get from the nature like the air, like the water, soil, sunlight, coal, petroleum, minerals, natural gas. We get it from the natural. That's why we are calling it the natural resource. The second one, the synthetic resource, like the plastics, paint, fiber, drug means medicine. So they are synthetic, they are man-made, we are calling them the synthetic fiber. Okay, and I hope you all know the meaning of the resource, anything which we use. You will be see here anything which we use, that is known the resource. So we classify here the two, natural and the synthetic resource. Now we will be talk about only the natural resource because the chapter name is coal and petroleum. Coal and petroleum are the natural resource. So again we will classify the natural resource into the two group. One is inexhaustible natural resource, second is exhaustible natural resource. Inexhaustible and exhaustible, you will be see exhaustible meaning the limited, those resource which is present in our environment at the limited form. And inexhaustibles definitely in our unlimited. जो रिसोर्स अनलिमिटेड है they will be known inexhaustibles. जो रिसोर्स लिमिटेड है they will be known the exhaustible. Now see here the inexhaustible यानी unlimited जैसे sunlight, air and water. We know that we can use it again and it will never be finished. ये कभी खत्म नहीं होंगे, हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं. They are present in nature in the high amount. Now exhaustible natural resource की बात करें, so they are in present limited forms. So definitely like the coal, petroleum, natural gas, minerals, forest, these are the exhaustible. क्यों? क्योंकि ये limited form के अंदर है, nature के अंदर. We can use it but not again and again. If we once use it then we know it will be damaged, it will be destroyed. एक बार यूज किया कोल, वो खत्म हो जाएगा, उसको बार बार नहीं करेंगे. नेचुरल गैस एक बार यूज की, उसके बाद वो यूज नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द एग्जॉस्टिबल और लिमिटेड रिसोर्स. आई होप यू गेट द मीनिंग. इन एग्जॉस्टिबल यानी अनलिमिटेड हमारे रिन्यूएबल होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स वी कैन यूज अगेन एंड अगेन. एग्जॉस्टिबल्स यानी नॉन रिन्यूएबल, जो सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे. Now we come to the next topic, fossil fuels. Fossil fuels, you have to remember the meaning of the fossil. Fossil are the remain part of the organism. ये क्या है? रिमेन पार्ट है. जितने भी हमारे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो काफी टाइम पहले, earlier, or we can say the before million years ago, the forest, the animals, they were destroyed, they were damaged by some any natural disasters. They buried under the soil for a long time. So you know that under the soil temperature is high, pressure is high, so their part is start to burn, और वो धीरे धीरे क्या होगा, उनके जो रिमेन पार्ट थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होने लगे, और उन्हीं को हम बोलते हैं फॉसाइल. सो इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई एक्सप्लेन यू, फॉसाइल क्या है? फॉसाइल एक ऐसे सोर्स है, ऐसा फ्यूल्स है जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन पार्ट से बनता है, जो काफी टाइम पहले अर्थ की सोइल में ब्यूरिड हो गए थे, और उनको क्या होता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए फ्यूल्स के अंदर. जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सभी हमारे फॉसाइल फ्यूल्स हैं. ये किससे बनते हैं? बने किससे? हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स से, उनके रिमेन पार्ट से. ओके, नाउ वी विल बी सी हियर हाउ फॉसाइल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड. कैसे ये फॉर्म्ड होते हैं? तो इसको फॉर्म्ड होने में बहुत लंबी प्रोसेस होती है. व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड बॉडीज buried under the soil for million of years,
then it break down into the small parts and they convert into the fossil fuels. ठीक है, तो इनको convert होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, around million of years. That's why we say it is exhaustible. ये limited है, हम इनको दोबारा नहीं बना सकते, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम इनको exhaustible बोलते हैं. Now student, we will be see here the first coal. What exactly the coal? Coal definitely हिंदी में हम इसको बोलते हैं कोयला. Coal is the hard ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल्स. ये हार्ड होगा और ये ब्लैक कलर का मिनरल्स होता है जो आसानी से बर्न हो जाता है. एंड दैट इज मेनली कंसिस्ट बाय द कार्बन. सबसे ज्यादा इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है. ये बनता कैसे? इन द सेम थिंग्स, क्योंकि ये क्या है, हमारा फॉसिल फ्यूल से इसकी प्रोसेस भी सेम ही होती है. डिकम्पोजिशन होता है लार्ज लैंड के अंदर. जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं अंडर द सोइल्स. ओके, एंड दे कन्वर्ट इनटू द कोल फॉर्मेशंस. सो कोल इज फॉर्म अराउंड द 300 मिलियन ईयर्स एगो. तो इतने साल के अंदर ये कन्वर्ट होते हैं. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होंगे. नाउ वी विल बी सी हियर कोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. डेफिनेटली वी यूज द कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें उससे एनर्जी मिलती है. एंड हाउ वी गेट इट? जब हम कोल को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो जो कोयला होता है कार्बन होता है ज़्यादातर उसके अंदर, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. वी ऑल नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंबशंस और व्हेन वी टॉक अबाउट द बर्निंग, सो एवरीथिंग इज बर्न और रिएक्ट विद द ऑक्सीजन्स इन द process of burning. So definitely carbon will react with the oxygens and that will be formed in the carbon dioxide. Okay, so I hope it's clear to you. Now you will be see here use of the coal. कोल को हम कहाँ यूज करते हैं? कोयला को हम घरों में यूज करते हैं, एज ए फ्यूल इंडस्ट्री में यूज करते हैं. आज से पहले जो हमारी रेल की ट्रेन चलती थी काफी टाइम पहले, सो दैट इज ऑल्सो रन बाय द कोल. आपने देखा होगा कोयले से ट्रेन चलती थी काफी टाइम पहले. आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी चलती है. नाउ इन द थर्मल पावर प्लांट्स, जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं, आज के टाइम में कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. सबसे ज़्यादा इंडिया में 60% के अराउंड जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोयले से बनती है. सो इन द थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ कोल इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द कोल गैस एंड द कोक, and it is used as a fuel to make the steam to run the steam engine for the train. तो पहले हमारा ऐसे यूज किया जाता था. Now student, we will be talk about the product of coal. If you will be see here the product of coal, definitely we are making a different product from the coal. So suppose you have a coal यानी कि जो कोयला है आपके पास. If you will be burn it, or if you will be give the heat to them in presence of the oxygen, I am writing here in the presence of oxygens, if you will be burn it, heat it, so it will be convert into the carbon dioxide. It will be burned. But if you will heat the coal in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, oxygen is not present, then it will not convert into the oxygen. Then what will be happen? Coal is a solid substance and it will be break into the some liquid part, some solid part, and some gas part. You have to remember, we heat the coal in absence of the air, then it will be break into the some liquid part, some solid part, and some gas part. The liquid part will be known as the coal tar, solid part will be known as the coke, and gas part will be known as the coal gas. I hope it's clear to you what exactly we are doing here. We will be heat the coal in the absence of the oxygens and it will be convert into these three parts. Coal gas, definitely it is the gas part. Coal tar is the liquid part. Coke is the, yes, solid part. Okay, so I hope it's clear to you. Definitely coal contains some kind of the impurities. Now one by one we will be discuss here the coal gas. Definitely coal gas is a gas form, okay, which is formed by the coal, or when we will give the strong heating in the absence of air, it will be converted into the coal gas. And mainly coal gas is contain the hydrogen and the methane mixtures, or most of the carbon monoxide, like the natural gases, okay, like the LPG, like the CNG. Coal gas is also the same. It is also used in the industries. Now the coal tar,
Definitely it is a very thick black liquid which present or which formed by the coal. Okay, it has a very unpleasant smell. I hope you know that in the earlier times the coal tar was used in the रोड मेकिंग. जो हमारे रोड बनते थे, सड़क बनती थी, उनमें कोल tar काफी ज्यादा यूज किया जाता था. आज भी यूज किया जाता है बट उस टाइम पे पहले काफी ज्यादा यूज किया जाता था. आज क्या यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा. बट लिसन, definitely the coal tar is used in the making of a road and it was also used in the making paint, perfumes. ये अभी भी यूज करते पेंट, परफ्यूम, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन बनाने में भी इनका काफी ज्यादा यूज होता है. ठीक है, सो दे आर यूज इन द मेडिसिन, पेंट, परफ्यूम, पेस्टिसाइड एंड द ट्रेडिशनली यूज फॉर द मटेलिंग द रोड. रोड को बनाने में भी यूज किया जाता था बिकॉज ये ब्लैक कलर का होता था और इसको हम यूज करते थे. नाउ द थर्ड वन इज द कोक. कोक इज द ओनली रिमेन सॉलिड पार्ट. आप देखोगे द डिफरेंस बिटवीन द कोल एंड द कोक. कोल के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा थी. कोल काफी ज्यादा इम्प्योर होता है कंपैरेटिवली कोक में. जब कोल को हम हीट करते हैं तो उसमें से इम्प्योरिटीज कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कोल गैस एंड कोल तार में कन्वर्ट होती हैं. बट जो सॉलिड फॉर्म होता है वो होता है कोक. सो कोक इज द प्योर कार्बन. यू हैव टू रिमेंबर, कोक इज द प्योर ब्लैक कार्बन. ब्लैक सॉलिड होता है. व्हेन यू विल बी बर्न द कोक, यानी कि जिसको हम चारकोल भी बोल देते हैं, वो भी कोक ही होता है. ठीक है, तो उसमें से फ्लेम बर्न नहीं होती है. Okay, I will be discuss here why flame is not producing when we burn the coke, but you have to remember coke is also made by the coal. It is the pure form of the carbon. It is a black porous solid substance. Now we will be see here the petroleum. Petroleum, definitely it is the liquid part of the fossil fuels. फॉसाइल फ्यूल्स भी हमें तीन पार्ट्स में मिलते हैं. आपको याद रखना है, जो भी हम अर्थ के नीचर्स में यानी कि हम अर्थ क्रस्ट में से जो फॉसिल फ्यूल्स गेन करते हैं वो भी तीन पार्ट्स में मिलते हैं. एक होता है गैस फॉर्म में, एक होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है सॉलिड फॉर्म में. सॉलिड फॉर्म को हम बोलते हैं कोल, लिक्विड फॉर्म को बोलते हैं पेट्रोलियम, और जो हमें गैस फॉर्म में मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल गैस. ओके, अभी हमने क्या देखा, कोल को देखा. कोल को हमने क्लासिफाई किया तीन पार्ट्स के अंदर, क्योंकि कोल से हमें क्या बना था, कोक. कोल से हमें क्या बना, कोल तार. और कोल से हमने क्या बनाया, कोल गैस. तो ये तीन चीजें हमने कोल से बनाई. नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से यानी कि जो लिक्विड पार्ट्स है उसके भी कई सारे फ्रैक्शंस होते हैं. नाउ इफ यू विल बी सी द पेट्रोलियम, डेफिनेटली इट इज द ब्लैक कलर सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. जो हम उसको उससे गेन करते हैं. ठीक है, अर्थ क्रस्ट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. नाउ पेट्रोलियम, हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म, डेफिनेटली द प्रोसेस इज द सेम. जो हमारे लैंड सरफेस पे जो प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनटू द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, एंड सम टाइनी प्लांट इज आल्सो, जो टाइनी प्लांट्स होते हैं वो इजीली से लिक्विड पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मोस्टली यू विल बी सी द पेट्रोलियम एंड द कोल नेचुरल गैस. आई एम राइटिंग हियर द नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये हमारे लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस होते हैं. ये ज्यादातर हमको सी, अंडर द सी मिलेंगे. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं अंडर द सी, दे आर स्मॉल इन द साइज और वो इजीली ब्रेक होते हैं और वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि लिक्विड और गैस की फॉर्म में. तो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जनरली वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी. ओके, आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम के वेल होते हैं यानी कि जो कुएं होते हैं इनके नेचुरल गैस के होते हैं वो सी के अंदर ज़्यादा होते हैं. बट जो कोल होता है, कोल इज जनरली यस मेक बाय द लार्ज प्लांट्स. जो प्लांट्स बड़े होते हैं जिनका साइज ज़्यादा होता है उससे कोल फॉर्म होता है. सो वी कैन से जो हमारा लैंड सरफेस होता है या टेरेस्ट्रियल सरफेस होता है उस पे जो प्लांट्स होते हैं दे जनरली कन्वर्ट इनटू द कोल, but the mostly aquatic plants they will be convert into the petroleum and the natural gas. I hope it's clear to you. Now students, we will be see here occurrence and the extractions of the petroleum. कैसे हम पेट्रोल को अकर करते हैं और किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे.
पेट्रोलियम डेफिनेटली हम कैसा करते हैं, इनके हम वेल बना देते हैं और उस वेल में सपोज करो ये हमारा नीचे, मैं यहाँ पर एक पिक्चर्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक बड़ा सा पहाड़ है और इसके नीचे यहाँ पर हमारा पेट्रोलियम है, ये लिक्विड पेट्रोलियम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ड्रिल करते हैं, यानी कि एक छोटा सा कुआं बनाते हैं और यहाँ पर मोटर्स के थ्रू, ये काफ़ी लंबा ड्रिल्स होता है, काफ़ी लॉन्ग ड्रिल होता है, लॉन्ग नैरो, और यहाँ से हम इस पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए हम वेल बनाएंगे, बट अगर ये सॉलिड होता यानी कोल होता तो उसको हम वेल के थ्रू नहीं करते। अगर ये गैस होती तो गैस को भी हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो पेट्रोलियम के लिए हम क्या बनाते हैं, ड्रिल होल्स बनाते हैं बाय द ड्रिलिंग, और गैस के लिए भी हम ड्रिलिंग यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल बी सी हियर द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। अब सपोज करो हमने पेट्रोलियम को रिफाइन तो कर लिया, मतलब एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है, हमारे पास ये पेट्रोल भरा हुआ है, सॉरी पेट्रोलियम है इसके अंदर। ठीक है, पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर का पोरस लिक्विड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है। अब हम उसको रिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि हम उसको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। वी क्लासीफाई द पेट्रोलियम इनटू द फ्यू फ्रैक्शंस, अलग अलग फ्रैक्शंस के अंदर हम इनको कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, यस हमने क्या करा, पेट्रोलियम लिया और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि काफ़ी टाइम तक हमने रख दिया और वो धीरे धीरे हम उसको फिल्टर कर देते हैं किसी चीज़ से। तो जो सबसे लाइट सब्सटेंस होता है वो हम ऊपर रख देते हैं, फिर उससे जो भारी होगा या डेंस होगा उसको नीचे, फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर देते हैं। यू विल बी सी हियर, यहाँ पर मैंने डेंसिटी के अकॉर्डिंगली उनको सेपरेट किया है। सो वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम। पहला आता है पेट्रोलियम गैस, जो काफ़ी लाइट होती है, वो इजिली स्केप कर जाती है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम से बनी है इसलिए हम इसको पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, और इसको इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वी जनरली यूज इट आवर होम्स, जो हम घर के अंदर सिलेंडर यूज करते हैं उसमें एलपीजी फिल होती है। और एलपीजी यस वो हमारा इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है, हाउस में भी यूज होती है एज ए फ्यूल। सेकेंड पेट्रोल, यानी कि पेट्रोलियम गैस के बाद जो सबसे लाइट फ्रैक्शंस होता है वो होता है पेट्रोल। पेट्रोल आर यूज डेफिनेटली यू नो दैट इन द व्हीकल्स एज ए फ्यूल्स। कैरोसिन ये उससे ज़्यादा इसकी फ्रैक्शन है, उससे ज़्यादा डेंसिटी है। फिर डीजल, फिर कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, फिर पैराफिन वैक्स, फिर बिटुमेन। बिटुमेन सबसे डार्क होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। बिटुमेन को आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन रोड मेकिंग के लिए। पहले हम कोलतार यूज़ करते थे, आजकल हम बिटुमेन को यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है उसके कंपैरेटिवली, कोलतार के कंपैरेटिवली। पैराफिन वैक्स कहाँ यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स होता है कैंडल बनाने में। आपने देखा होगा वैसलीन बनाने में, जो वैसलीन्स होती हैं, कैंडल्स होती हैं, ये हमारे पैराफिन वैक्स से बनती हैं। नाउ द लुब्रिकेंट ऑयल, ये हमारा लुब्रिकेंट ऑयल होता है, काफ़ी ब्लैक कलर का ऑयल है। वी यूज़ इट इन द लुब्रिकेशन इन द मशीन्स और इंजन। मशीन और इंजन में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसको हम लुब्रिकेंट डाल देते हैं, बोल देते हैं। नाउ द डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके सब जगह सबके अलग अलग यूज़ हैं। ये सभी क्या है, हमारे फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम के। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ स्टूडेंट वी विल बी सी हियर द एडवांटेज ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी है उसकी क्या क्या एडवांटेज है। डेफिनेटली व्हेन वी बर्न द एलपीजी गैस इट विल बर्न कंप्लीटली। फर्स्ट थिंग्स, ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगी, इजिली बर्न होगी। अगर कंप्लीटली बर्न होगी इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। ओके, इट हैज़ ए हाईली कैलोरिफिक वैल्यू। अगर हम कोल और एलपीजी को कंपेयर करें, सो कोल विल डेफिनेटली इट रिमेन द सम पार्ट, इसका कुछ पार्ट रह जाता है जलने के बाद, दैट इज नॉन द ऐश, जिसको हम राख बोल देते हैं या ऐश बोलते हैं। बट इन द एलपीजी इट विल कंप्लीटली बर्न, सो इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट कंपैरेटिवली कोल। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जैसे हमने बात करी कोल की, हमने 1 किलो कोल लिया और हमने 1 केजी ही एलपीजी ली, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो हीट देगी वो 1 केजी एलपीजी देगी, क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न होगी, ये कंप्लीट बर्न नहीं होगा। ओके, सो हाईली कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द एलपीजी। सिमिलरली दिस इज द स्मोकलेस, ये स्मोकलेस होती है, इसमें से कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं होती है। एंड इट डज नॉट लीव एनी सॉलिड रेजिड्यू बिहाइंड और आफ्टर द बर्निंग। ओके, जैसे बर्न होगी इट विल नॉट रिलीज or leave any kind of the residue. I hope it's clear to you. Now we come to the third one, natural gases. ये भी पेट्रोलियम का हमारा थर्ड कंपोनेंट है। पहले हमने डिस्कस किया फर्स्ट कोल
सेकंड हमने डिस्कस किया पेट्रोलियम। थर्ड डिस्कस कर रहे हैं हम नेचुरल गैस, दोज गैस विच डायरेक्टली प्रेजेंट और फाउंड फ्रॉम द नेचर। ओके, कोल में भी हमने गैस पढ़ी थी, कोल गैस, यू हैव टू रिमेंबर दैट। पेट्रोलियम के अंदर हमने पढ़ी पेट्रोलियम गैस, दैट इज नॉन द एलपीजी। नेचुरल गैस के अंदर हमें गैस मिलती है जिसको हम कंप्रेस्ड करते हैं और जिसको हम बोल देते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, वी डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम द नेचर, that's why we're calling the natural gases, and it has also the some advantage. Natural gas like the CNG, we use it in the, or we can say we use it as a fuel in the where we use in the vehicles, definitely हमारे बहुत सारे व्हीकल्स है जो सीएनजी से रन करते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता, इट कॉज नो एयर पॉल्यूशन, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, द सेम थिंग। I hope it's clear to you. Now you will be see the use of the natural gas. Definitely we use it in the domestic use as well as the industrial use. We use in the thermal plant or thermal power to for the generating electricity. Electricity generate करने के लिए हम coal भी use करते हैं, petroleum gas भी use करते हैं, natural gas भी use करते हैं, and it also use in the car, bus, auto as a fuel. I hope it's clear to you. Now student, we will be see here the petrochemicals. Petrochemicals, definitely these are the some chemicals which we obtain from the petroleum and the natural gas. अब petrochemicals है क्या? सपोज करो ये हमने पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया अर्थ की सरफेस से, तो इस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये क्या है? पेट्रोलियम। I'm just explaining you in the simple word what are the petrochemicals. Okay, we have just taken here the petroleum and we know that it contain lot of the chemicals. If we will extract them, हमने क्या करा, उनको सेपरेट कर दिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अलग अलग कर दिया। ये पहला केमिकल्स हो गया, दूसरा केमिकल्स हो गया, तीसरा केमिकल्स हो गया, चौथा केमिकल्स हो गया। दिस इज द ए बी सी डी। सो हमने ये 4 केमिकल्स अलग अलग करे हैं, ये बोले जाएंगे पेट्रोकेमिकल्स। रीजन, बिकॉज दीज केमिकल्स वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेट्रोल। और कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक द बेंजीन, लाइक द टॉल्विन, ये कुछ केमिकल्स होते हैं। एंड वी यूज दीज केमिकल्स इन मेकिंग द मेडिसिन, in making the clothes, in making the plastics, in making the rubber। दवाई यानी मेडिसिन बनाने में, रबड़ बनाने में, फाइबर बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, परफ्यूम बनाने में और डाई बनाने में, कलर बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, we have completed this chapter. If you have any query,